Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, I'm going to discuss the color purple. Complete summary I will discuss as well major facts which is most important and relevant for upcoming UGC NET English exam. So we will discuss in detailed manner as well jitna bhi important facts you will have to prepare for exam point of view I'll discuss in this video. So stay tuned till the end of this video. Don't try to skip this video while watching because you can skip the important point that I mentioned during the videos. And guys, remember, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel to get further notification as well. If you like the way I explain in my videos, please hit the like button. So guys, let's start today's video without wasting our time. So basically guys, ये जो The Color Purple novel है, that was published in the year 1982. Remember the publication year of this novel, and this novel won Pulitzer Prize in 1983. Most important novel which is written by American writer Alice Walker, right? एलिस वॉकर ने इसको लिखा है. सो एक पावरफुल नॉवल है ये. इसमें एक्सप्लोर किया जाता है थीम्स ऑफ रेसिज्म, राइट, सेक्सिज्म, लव and spirituality can be seen as a theme in this particular novel. We will discuss in detailed manner spirituality, right? So these are the themes which is based for this novel, right? So guys, basically it is written in a epistolary style. This novel written in the style of epistolary. This is also the type of novel which I explored in my last videos. Okay, so this is basically epistolary novel. Epistolary novel which is written in the form of letters, right? So epistolary style of this novel, and this consisting of letters mainly from the protagonist Sally. Sally जो है आपकी main protagonist है of the novel, protagonist. Okay, this is the protagonist of the novel Sally, जिस पर ये complete novel आपकी based है, right? So guys, after summarize this complete novel, first I would like to tell you the major characters, right? So first I'm gonna give you major characters, right? First we will visit major characters of the novel. So first we have Sally. As I mentioned, Sally, this is the protagonist of the novel. Basically एक ये poor black woman होती है who evolves from an oppressed victim to an independent woman. तो किस तरीके से इनकी लाइफ जो है, इनकी लाइफ में किस तरीके से लाइफ पूरा विक्टिम से फुलफिल था और किस तरीके से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं एंड शी बिकेम इंडिपेंडेंट वुमन इन हर लाइफ, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दी सैली. आई विल डिस्क्राइब अहेड. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू शी इज protagonist of the novel. Protagonist, right? And Nettie, another character in the novel. Nettie इनकी सिस्टर होती है, right? So basically जो Nettie है एक Sally's educated sister होती है. You guys can say educated sister. ये इनकी educated sister है. And another character we have Mr. Albert, right? मिस्टर अल्बर्ट एक मैरिड मैन होता है जिससे आपकी जो सैली है इनकी फोर्सफुली मैरिज करा दी जाती है. वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल्ड मैनर अहेड. फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवल, राइट? सो फर्स्ट वी हैव सैली, नेक्स्ट वी हैव नेटी, एजुकेटेड सिस्टर ऑफ सैली, एंड मिस्टर अल्बर्ट became the husband of Sally, right, in the forceful marriage of, right? So next character we have Shug, Shug, Shug Avery, right? Shug Avery ये एक ब्लू सिंगर होती हैं और कहीं ना कहीं फ्रेंड होती हैं मिंस्टर की, राइट? अल्बर्ट की फ्रेंड होती हैं और आगे शी कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट और इनकरेज करती हैं आपका सैली को टू बिकम अ इंडिपेंडेंट वुमन. In other words, she helped a lot to Sally, the protagonist of the novel. So this is a woman also in the novel, और ये कहीं ना कहीं help करती है Sally को transformation में, right? To become an independent woman, right? After the Shug Avery, we have Sophia, another woman of the novel. You will find out the major character
इन मेजर कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया, जो सैली है प्रोटैगनिस्ट है, सैली की सिस्टर नेटी होती हैं, मिस्टर जो इनका हस्बैंड बनता है फोर्सफुली मैरिज के बाद, एंड शग अवेरी जो होती है एक विमन होती है, एक डांसर होती है जो हेल्प करती है सैली को, एज वेल जो सोफिया है कहीं ना कहीं इन्हेंस करती है कॉन्फिडेंस इन सैली. So these two women help Sally to become independent women, right? So let's move on ahead. So guys, after go ahead, first I would like to give you detailed explanation regarding protagonist of the novel, क्योंकि सैली को अगर आप अंडरस्टूड कर लेते हैं नॉवल में, देन कंप्लीट नॉवल यू विल अंडरस्टूड इन ईजीएस्ट मैनर, राइट? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सो प्लीज कीप पेशेंस, ओके? सो गाइज बेसिकली ये जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है सैली, राइट, शी सफर्ड अ लॉट इन हर लाइफ. इन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र किया था अपनी लाइफ में फ्रॉम द चाइल्डहुड कि कहीं ना कहीं इनको सफ़र के अलावा और कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ के अंदर प्लेजेंट मोमेंट भी होते हैं. इतना ज़्यादा शी सफ़र्स बेसिकली फ्रॉम हर स्टेप फादर अल्फोंसो. अल्फोंसो इनके स्टेप फादर होते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू ही इज़ अ वेरी क्रूल पर्सन, राइट? In his lifetime, he cruel a lot because many time he used or exploit Sally, right? तो सैली को इन्होंने कई बार exploit किया था. Even she is 2 times pregnant, right? Just because of his stepfather. So this is the life of Sally. She had 2 children with that person, Alfonso, but he threw them out. Alfonso threw them out and he told Sally, you have no permission to say anything in this world to anyone, right? इसको परमिशन नहीं था कि किसी से भी अपनी बातें शेयर करे. शी हैज़ ओनली परमिशन टू राइट लेटर्स. तो सिर्फ ये गॉड को लेटर्स लिख सकती थी. जितना भी इसका अपना एक्सपीरियंस होता था, वट एवर शी फेस्ड इन हर लाइफ, सो शी रॉट ओनली हिज पर्सनल लेटर्स टू गॉड, राइट? सो दिस इज़ द वे द लाइफ इज़, आप बोल सकते हो मतलब कि ये जो सैली है इनकी लाइफ जो थी इस सफ़र में किसी ना किसी तरीके से स्पेंड हो रही थी, राइट? सो गाइज ये जो अल्फोंसो इसका स्टेप फादर होता है सैली का, इसने एक स्टेटमेंट बोला था सैली से, यू बेटर नॉट नेवर टेल नोबडी बट गॉड. दिस इज द फेमस स्टेटमेंट विच इज स्टेट बाय अल्फोंसो टू हिज डॉटर सैली, राइट? So I'm just writing that line. You better not never tell nobody but God. कि तुम किसी से भी, मतलब कि किसी से भी मत कहना, बस भगवान से कह सकते हो. वट एवर हैपनिंग विद यू, वट एवर यू फेस्ड, जो भी तुम सफ़र करते हो. सैली को इसने बोला था, ये द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. तो ये इतना क्रूर बंदा था. उसके बाद क्या होता है, जो सैली थी कहीं ना कहीं शी हैज़ नो वॉइस, राइट? साइलेंटली वट एवर उसके साथ जितना भी सफ़र किया जाता था, शी जस्ट फेस्ड ऑल द थिंग्स. उसको बियर अप करना पड़ता था, राइट? और आगे क्या होता है, फोर्स्ड मैरिज हो जाती है इसकी, और अगेन शी कंटिन्यूड सफरिंग. ठीक है, आगे क्या होता है, इसकी शादी हो जाती है. किससे हो जाती है? मिस्टर से. लेट मी स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये जो सैली है, अब इनकी फोर्स्ड मैरिज हो जाती है. फोर्स्ड मैरिज किनसे होती है? मिस्टर से, राइट? अल्बर्ट, इस बंदे से इसकी शादी हो जाती है, और ये ऑलरेडी मैरिड होता है. इसके 2 और 3 चिल्ड्रन होते हैं ऑलरेडी, और ये भी बहुत ही क्रूर टाइप ऑफ पर्सन होता है हु सफ़र्स, जिसकी वजह से सैली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगेन, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, जो ये आदमी जो होता है, अल्बर्ट होता है, ये बहुत ही क्रूर होता है और सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन होता है. कंसीडर सैली सर्वेंट. किसी भी प्रकार का इसके पास कैसा भी आप बोल सकते हो, ही हैज़ नो काइंडनेस टूवर्ड्स दी सैली. सैली को ये जस्ट लाइक सर्वेंट अंडरस्टूड करता था, और इसके साथ इसको ब्रूटली ही बीट्स मैनी टाइम अगेन एंड अगेन सैली. बट सैली जस्ट साइलेंटली फेस्ड ऑल दी थिंग्स.
ये जो लड़की होती है सैली जो होती है, अभी जो मदर बन चुकी है यहाँ पर, इस मिंस्टर के बच्चों की माँ बन चुकी है, अभी ये क्या करती है, इसको इतना ज़्यादा इसके साथ ब्रूटली इसको पीटा जाता है, इवन देन शी सेज नथिंग टू एनीबडी एल्स, राइट। तो अभी ये लाइफ इसकी हो गई है सैली की। इनफैक्ट शी डजंट नो अबाउट द प्लेजेंट मोमेंट। इतना ज़्यादा इसने सफरिंग और यही सब चीज़ लाइफ में देखी होती है, तो इसको लगता ही नहीं है कि प्लेजेंट मोमेंट भी लाइफ के अंदर होते, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। सो ये जो थी आपकी सैली का लाइफ है। और ये जो सैली है ये एक ऐसी विमेन होती है जो विदाउट डू एनी थिंग जस्ट फेस्ड ऑल द थिंग्स हैपनिंग विद हर। जितना भी एक्सप्लॉइटेशन इसके साथ होता है तो ये उसको सिर्फ फेस करती है, राइट। आगे क्या होता है, सैलीज स्ट्रेंथ थ्रू फीमेल रिलेशनशिप। आगे नेटी के रूप में, नेटी आई मैंशन इन स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो, नेटी जो इसकी एजुकेटेड सिस्टर होती है, तो नेटी ही वो एक पूरे वर्ल्ड में एक अनदर वुमन होती है जो कहीं ना कहीं सैली को लव करती है। अदरवाइज देयर इज़ नो वन हु लव्ड सैली। तो सैली को तो ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में जो मुझे प्यार करे ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, एक्सेप्ट नेटी जो इसकी सिस्टर होती है। नेटी भी इसको सिस्टरहुड होता है इन दोनों के बीच में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स होती है दोनों सिस्टर्स के बीच में, दे सपोर्ट टू ईच अदर, राइट, अहेड इन द नॉवल। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये नेटी होती है इसकी सबसे प्यारी सिस्टर होती है, और जब नेटी जो होती है वो मिंस्टर के घर आती है, तो ये जो मिंस्टर होता है ही इज़ ट्राई टू फ्लर्टरिंग विद नेटी ऑल्सो। लेकिन जो नेटी होती है ये समझदार होती है और ये वहाँ से रन अवे हो जाती है। शी रन अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर अल्बर्ट, क्योंकि ये यहाँ से चली जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि ये इसके घर पे आती है, अपनी सिस्टर के घर पे, बिकॉज जो इसका फादर होता है अल्फोंसो, जो मैंने भी बताया था स्टेप फादर, जो बहुत ही क्रूर था, जिसकी वजह से 2 टाइम शी प्रेग्नेंट सैली। तो ये नहीं चाहती थी कि मेरी सिस्टर के साथ भी ये सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट करे। तो इसने अपनी सिस्टर को, नेटी को, अपने घर बुला लिया यहाँ पे मिंस्टर के पास। लेकिन इसने देखा कि जो मिंस्टर इसका मैरिड हस्बैंड था वो भी उसका भी जो एक आई कॉन्टेक्ट था, और बोल सकते हैं जो एक उसकी मेंटालिटी थी टूवर्ड्स दी नेटी, नॉट प्योर। तो वो उसको भी बहुत ही काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ब्रूटली उसको देखता था, और कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि नेटी ऑल्सो कैन रिप्लेस बाय सैली। बट ऐसा नहीं हुआ। शी रन अवे फ्रॉम देयर, नेटी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये वहाँ से भाग के कहाँ चली जाती है, अफ्रीका चली जाती है। सो रिमेंबर द फैक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, नेटी आफ्टर रन अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ मिंस्टर कहाँ चली जाती है, अफ्रीका चली जाती है। और जैसा कि मैंने इन स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो बताया था कि एक इपिस्लरी टाइप ऑफ नॉवल है। इपिस्लरी टाइप ऑफ नॉवल में भी 2 पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने मिलेंगे आपको। तो एक तो अमेरिका का देखने मिलेगा एंड अफ्रीका। तो ये दोनों सिस्टर्स शी लिव इन अमेरिका और ये अफ्रीका में। तो इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है लेटर्स का, जो इनके पर्सपेक्टिव आपको देखने मिलेंगे। सो दीज पर्सपेक्टिव गिव्स काइंड ऑफ आप बोल सकते हो टेक्निक ऑफ एपिस्टलरी नॉवल। तो लेटर्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव यहाँ पे जॉइंटली मिल रहे हैं। तो ये भी एक एक न्यू थिंग्स निकल कर आ रही है, द कलर पर्पल, राइट। दैट्स वाई भी हम इसको पुलित्जर प्राइज विनर और विनिंग नॉवल कंसीडर करते हैं, द कलर पर्पल, राइट। आगे क्या होता है, ये जो अफ्रीका चली जाती है आपकी, को क्या नाम होता है इसका, नेटी। उसके बाद रोल आता है शग अवेरिका, जो मैंने बताया था अनदर वुमन इन दिस नॉवल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, राइट, टू कहीं ना कहीं सैली को हेल्प करने में अच्छा रोल जिसने प्ले किया है। सो वी हैव शग एवरी, राइट, ये इसका कंप्लीट नेम है, अनदर कैरेक्टर है। तो बेसिकली एक डांसर होती है, राइट, और ये इसको सिखाती है, शी टीच सैली हाउ टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। इफ़ यू लव योर सेल्फ देन अदर वन ट्राई टू लव यू। वो इसको यही सिखाती है कि जैसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रिस्पेक्टेड। अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखे, जब दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जस्ट सेम थिंग्स शी ट्राइज टू टीच सैली इन हर लाइफ। क्योंकि ये जो उसकी फ्रेंड होती है, इसके जो मैरिड हस्बैंड होता है, उसकी अभी मैंने आपको नेम बताया था उसका, अल्बर्ट की। तो ये बेसिकली घर पे आती जाती है, और जब ये इससे मिलती है सैली से, तो एक अच्छा रिलेशनशिप इनका कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाता है दोनों का इमोशनली। तो ये इसको समझाने की कोशिश करती है, इवन शी ट्राइज टू मेक हर थिंक इन अ डिफरेंट वे। तो उसको यही बोलती है, सैली आप बहुत अच्छी हो, और आई एम जस्ट टेलिंग यू शी इज़ द फर्स्ट वुमन हु टेल वंस टू सैली कि यू आर रियली ब्यूटीफुल एंड गुड वुमेन। तो ये इसको बताती है कि आप बहुत अच्छी हैं,
तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक विश्वास आता है, एक ट्रुथ आता है टूवर्ड्स हर सेल्फ कि मैं भी वर्थ हूँ, राइट। अदरवाइज जितना इसने सफरिंग फेस आउट किया था अपनी लाइफ में, तो इसको लगता ही नहीं था कि, इसे ऐसा लगने लगा था कि शायद से मैं हूँ ही ऐसी, राइट, अगली टाइप्स ऑफ वुमेन, क्योंकि एक ब्लैक वुमेन थी, पुअर थी, दैट्स वाई ऑल्सो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता था। तो ये शग ने कहीं ना कहीं उसको बहुत हेल्प किया। और जो ये शग थी, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन थी, ओके। तो इन्होंने सिर्फ यही समझाया इनको, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो सैली और शग थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों के अंदर अच्छी फ्रेंडशिप बिल्डअप हो जाती है। और आगे हमारे पास रोल आता है सोफिया का, राइट। सोफिया अनदर विमन इन द नॉवल। और ये सोफिया भी क्या करती है, ये भी एक सिंबल ऑफ रिबेलियन, आप बोल सकते हो इसको, सोफिया को सिंबल ऑफ रिबेलियन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सोफिया बेसिकली कौन होती है, जो मिंस्टर होता है ना, जो अभी मैंने आपको मिंस्टर अल्बर्ट के बारे में बताया था, जो सैली का फोर्स्ड हस्बैंड होता है, मैरिड हस्बैंड होता है, तो इसका ऑलरेडी एक सन होता है, राइट। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हार्पो, राइट, हार्पो। तो ये उसकी वाइफ होती है सोफिया, राइट। सो इसका जो पहले का जो अर्लियर बेटा होता है, पहली वाइफ से जो मिंस्टर का बेटा होता है हार्पो, हार्पो इसका गर्लफ्रेंड और इसकी वाइफ होती है सोफिया। और इस तरह से सोफिया और सैली के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और सोफिया कहीं ना कहीं उसको, सैली को इंडिपेंडेंट होने के लिए, रिबेलियन होने के लिए फोर्स करती है, उसको सिखाती है, उसको समझाती है। सो दीज टू वुमेन प्ले मेजर रोल टू ट्रांसफॉर्म सैली इनटू इंडिपेंडेंट वुमेन इन द नॉवल, राइट। सो चलिए, आफ्टर दी टू वुमेन जिनका मैंने आपको बताया, सोफिया और शग ने किस तरीके से हेल्प किया सैली को ट्रांसफॉर्म होने में इंडिपेंडेंट वुमेन, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस जर्नी टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। तो जो सैली की जर्नी थी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, लेट्स डिस्कस। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो जर्नी थी कैसे स्टार्ट हुई, तो बेसिकली नेटी के जो लेटर्स थे, उस ट्रुथ का कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिवलेशन हुआ, राइट। जो ट्रुथ था बेसिकली क्या हुआ था, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो नेटी थी, इनकी सिस्टर थी, वो वहाँ से लेटर्स लिखती थी अफ्रीका से, शी राइट लेटर्स, ठीक है, लेटर्स लिखती थी अपनी सिस्टर नेटी के लिए। बट ये जो मिनिस्टर होता था, इसका जो हस्बैंड था, मैंने बताया आपको अभी कैरेक्टर, ये क्या करता था, सारे लेटर्स को हाइड कर लेता था, छिपा देता था, राइट। इसने कभी रिवील ही नहीं किया कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें लेटर्स लिखे हैं। ऐसा वो क्यों करता था, सो दैट सैली कंसीडर हर सेल्फ अलोन इन दिस वर्ल्ड, जिससे कि सैली को ये फील हो कि वो अपनी इस पूरी दुनिया में अकेली है और उसका कोई भी नहीं है टू होम शी कैन कंसर्ट की मेरा लवेबल और बी लव्ड है, जो भी है, राइट, कि मेरा अपना। तो ऐसा फीलिंग आने के लिए इसने क्या करा, मिस्टर ने जितने भी लेटर्स आपके नेटी ने अफ्रीका से लिखे थे उन सभी को हाइड कर लिया। बट जब इसकी मैं जर्नी बता रही हूँ, तो जब सैली का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वुमेन बन रही थी, तो शी फाइंड आउट द ट्रुथ कि जो लेटर्स थे जो उसने कहीं छिपा के रखे हुए थे, वो सभी सारे लेटर्स इसको मिल जाते हैं सैली को। और सैली को नाउ शी कम टू नो कि उसके उन लेटर्स के थ्रू, जो नेटी ने लेटर्स लिखे थे, उसमें वो नेटी सैली को बताती है कि जो तुम्हारे दो बच्चे थे, टू चिल्ड्रंस ऑफ सैली फ्रॉम द अल्फोंसो द स्टेप फादर ऑफ सैली, वो दोनों बच्चे, नेटी ने उसको बताया कि दोनों के दोनों जिंदा हैं, दीज टू चिल्ड्रन आर अलाइव। और वो उसके साथ, नेटी के साथ रह रहे हैं अफ्रीका में। और शी नर्च देम वेरी वेल मैनर, कि वो उनको बहुत ही अच्छे वेल मैनर में उसको नर्च कर रही है, अपने दोनों उसके बच्चों को। अभी सैली क्या होती है, ये कॉन्फिडेंस हो जाती है, क्योंकि इसको एक नहीं 3 लाइव्स अब ऐसी मिल जाती है जिनको ये अपना बोल सकती है, सैली की सिस्टर नेटी और इसके 2 चिल्ड्रन, राइट। जो कहीं ना कहीं इसको ऐसा पता था कि वो मार चुके हैं, यानी कि जो अल्फोंसो स्टेप फादर ऑफ सैली के थे, उन्होंने उसको मार दिया था। बट ऐसा नहीं था। द ट्रूथ वॉज दैट नेटी ने उनको नर्च कर रही है वो अफ्रीका में एज ए मिशनरी, जो नेटी है एज ए मिशनरी वहाँ पर है, और वो इनको अच्छे से नर्च कर रही है और बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड में, राइट। सो दिस इज़ द ट्रूथ। जब उसको पता चलता है तो अभी उसको बहुत अच्छा फील होने लगता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आने लगता है। और नाउ शी फेस कन्फ्रंट करती है मिस्टर को एंड ब्रेकिंग फ्री। अभी वो क्या करती है, उसको उसकी लाइफ से अब वो डिसीजन ले सकती है। नाउ शी डू नॉट वांट टू लिव विद मिस्टर, अब वो मिस्टर के साथ रहना नहीं चाहती है। अब उसके अंदर वो, आप बोल सकते हो, पावर आ गई है। सो शी कैन क्वेश्चन टू मिस्टर, ठीक है। अभी वो उस पर क्वेश्चन करने लगी है कि आई कैन नॉट लिव विद यू बिकॉज यू हैव डन
रियली वेरी ब्रूट विद मी। तो दैट्स द रीज़न अभी सैली ने उसके साथ रहना बंद कर दिया है। इनफैक्ट उसने ये भी बोला था, अंटिल यू डू राइट बी माई एवरीथिंग यू टच विल क्रम्बल। मीन्स जब तक तुम मेरे साथ नहीं करोगे तब तक तुम्हारी हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया था आपका सैली ने मिनिस्टर को। अभी क्या होता है, वो मिनिस्टर को छोड़ देती है और शग अवेरी के साथ टेनिस चली जाती है। टेनिस एक जगह का नाम है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। टेनिस कहाँ चली जाती है? टेनिस चली जाती है। कौन चली जाती है? शैली चली जाती है विद शग, अनदर वुमन इन द नॉवल। वहाँ से ये क्या करती है, शी स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अभी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है यहाँ से टेनिस जाके, और शी स्टार्ट, और कहीं ना कहीं सैली खुद को पैंट बनाने के बिजनेस से शुरू करती है। तो ये पैंट का बिजनेस स्टार्ट करती है, पैंट्स, राइट, रिमेंबर, पैंट्स का बिजनेस शी स्टार्ट। एंड ये इसके लिए एक सिर्फ बिजनेस नहीं था, इसका जो फ्रीडम आइडेंटिफिकेशन था, इसकी फ्रीडम का, राइट, सैली की फ्रीडम्स आइडेंटिफिकेशन था टू स्टार्ट द बिजनेस, हर ऑन बिजनेस। वेरी स्मॉल वे से इन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या होता है, सैलीज न्यू लाइफ, यानी कि जिसमें हैप्पीनेस एंड पीस था, वो इसकी स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली क्या होता है, जो मिनिस्टर होता है, जो इसका हस्बैंड होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एंड फॉरगिवनेस। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नाउ ही चेंज हिमसेल्फ और रिस्पेक्ट देने लगता है सैली को, और जितना भी उसने पीछे उसके साथ गलत किया था, तो एवरीथिंग वो धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करता है मिनिस्टर जो होता है। लेकिन अब क्या होता है, उसके जो मन होता है सैली का, सैली के मन में मिस्टर के लिए अभी कुछ नहीं बचता है। सैली के मन में सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए एंड अपनी सिस्टर के लिए बहुत सारा लव होता है, और उन्हीं के लिए शी लाइक टू लिव। अभी वो जीना चाहती है और कुछ करना चाहती है, राइट। तो इस तरीके से उसके बाद रियूनियन हो जाता है नेटी का अपने बच्चों के साथ, जो एक इसके लिए, सैली के लिए एक बिग ड्रीम होता है, जो इसका कम ट्रू हो जाता है, राइट, जब शी मीट्स विद हर चिल्ड्रन। और उसको जब वो उनसे मिलती है तो उसको अब ऐसा लगता है कि उसने कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा यंग महसूस नहीं किया जितना वो उस समय अपने आप को यंग महसूस करती है व्हेन शी मेट एट द मोमेंट, जब वो अपने बच्चों से मिलती है, सैली। सो दिस इज़ दी जर्नी ऑफ सैली इन दिस नॉवल। और ये पूरी नॉवल जो है आपकी सैली के राउंड अबाउट ही घूम रही है। अगर आपने सैली कैरेक्टर को अच्छे से अंडरस्टूड कर लिया है तो इसके जितने भी मेजर फैक्ट्स हैं आपको सिर्फ उनको अंडरस्टूड करना है। एज आई टोल्ड यू कि जो कलर पर्पल है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1982 एंड वॉन पुलित्जर प्राइज इन 1983। Remember the year I'm just mentioning as well. This is the epistolary novel, okay? और यहाँ पे क्या होता है, टेनिस जाती है। कौन जाती है? सैली जाती है विद शक के साथ, वो टेनिस जाती है टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, राइट। और इसकी जो नेटी सिस्टर होती है वो अफ्रीका चली जाती है, और वहाँ से शी रॉट मैनी लेटर्स। किसको लिखती है? अपनी सिस्टर सैली को लिखती है। और वो कौन सा इंसान होता है जो कहीं ना कहीं हाइड कर लेता है लेटर्स को? तो वो उसका खुद का हस्बैंड होता है मिस्टर, और उसका स्टेप फादर उसका क्रूरलिटी दिखाई है, राइट। तो दिस इज़ द नॉवल अबाउट द कलर पर्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इतना जितना मैंने आपको समराइज किया है इन दिस नॉवल, सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ गाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन दिस नॉवल which will help you to give you crystal cut, right? So first question we have, which is asked in examination of your, when was the color purple published? I'm just writing question. So guys, first question, when was color purple published, right? So here we have 1982, as we have 4 options and answer we have 1982, right? Another question guys, from this particular novel, which literary form does the color purple primarily use? यहाँ पे literary forms पूछी है आपकी पर्टिकुलर नॉवल की, लिटरेरी फॉर्म ऑफ द novel which first used. So answer we have epistolary novel, like option we have stream of consciousness, modernist narrative, magical realism, or epistolary novel. So as I told you, this is the epistolary novel, right? And next question we have, what prestigious award did Alice Walker win for the color purple? कलर पर्पल के लिए कौन सा अवार्ड इनको मिला है एलिस वॉकर को?
सो गाइस आंसर वी हैव, जैसे ऑप्शन में आपको नोबेल प्राइज होगा, मैन बुकर प्राइज हो सकता है, राइट, हुगो अवार्ड हो सकता है, तो आंसर वी हैव पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, राइट। तो फॉर फिक्शन के लिए इनको मिला है। एंड इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, you guys can see in exam, who is Sally's primary correspondent in her letters at the beginning of the novel, right? तो बेसिकली वो कौन था सैली का जिससे वो अपने लेटर्स के थ्रू अपनी बात बोलती थी? तो ऑफ कोर्स द आंसर वी हैव गॉड, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इसका स्टेप फादर था अल्फोंसो ही, उसने क्लियरली इसको बोला था कि इन दिस वर्ल्ड यू हैव नो राइट टू से एनीबडी वट एवर इज यू आर जस्ट फेसिंग इन योर लाइफ। तो सिर्फ आप किससे कह सकते हो? गॉड से कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो ऑफकोर्स वो कॉरेस्पॉन्डेंस कौन थे? गॉड थे, राइट। सो अकॉर्डिंग लाइक इन दैट मैनर व्हाट डज सैलीज बिजनेस सिंबलाइज इन दिस नॉवल? तो इस नॉवल के अंदर जो बिजनेस था सैली का वो क्या सिंबलाइज कर रहा था? तो कहीं ना कहीं वो जो बिजनेस था हर फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस को सिंबलाइज कर रहा था। एज आई टोल्ड यू कि जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से इनको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फीलिंग्स आने लगी थी और पीस मिलने लगा था इनको लाइफ के अंदर, राइट। और हु इज शक अवेरी इन दी नॉवल? अभी शक के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, शक कौन थी? तो ऑफकोर्स आई टोल्ड यू जो शक थी एक ब्लूज सिंगर थी, तो डांसर, शी इज एक्चुअली सिंगर, शी वॉज अल्बर्ट्स लवर। और कहीं ना कहीं अल्बर्ट जो था इसको प्यार करता था शक को, और ये टाइम टू टाइम उनके घर पे आया करती थी, जिससे जो सैली के रिलेशनशिप थे कहीं ना कहीं शक के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बिल्डअप हो गया था, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन जस्ट लाइक विच थीम इज नॉट अ मेजर कंसर्न इन द कलर पर्पल? नॉट यहाँ पे पूछा है, तो बेसिकली इसके अंदर फीमेल एम्पावरमेंट दिखाया गया है, रेसिज्म आपको देखने मिलेगा, कॉलोनियलिज्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नॉवल के अंदर, बट स्पेस एक्सप्लोरेशन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ थीम डिक्लेयर इन दिस पर्टिकुलर नॉवल रिगार्डिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक इन दैट मैनर व्हाट सिग्निफिकेंट लिटरेरी टेक्निक को लेके क्वेश्चन आ जाएगा? डज एलिस वॉकर यूज टू गिव ऑथेंटिसिटी टू सैलीज वॉइस? तो वो कौन सी इन्होंने, आप बोल सकते हो जो लिटरेरी टेक्निक इन्होंने यूज किए? तो आंसर वी हैव Southern Black Vernacular English, right? And next question, how does Natty communicate with Sally after she leaves? जब ये दोनों बहन अलग हो जाती हैं तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करती हैं? सो थ्रू लेटर्स दैट मिस्टर हाइड्स, तो लेटर्स के थ्रू ही इनका कन्वर्सेशन होता है विच वॉज हाइड बाय मिस्टर के द्वारा, जो इसका हस्बैंड था अल्बर्ट, उसके थ्रू इसको हाइड कर दिया जाता है, जो बाद में उसको लास्ट में पता चलता है, राइट। और व्हाट डज द कलर पर्पल सिंबलाइज इन द नॉवल? कलर पर्पल क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है लव, ब्यूटी इन द मिडिस्ट ऑफ सफरिंग। तो इसमें इन्होंने बताया किस तरीके से प्यार और जो ब्यूटी होती है वो सेंटर समझा जाता है सफरिंग का। सो दिस इज द गाइज नॉवल of the color purple. Hope the way I discuss in today's video आपको clear हुआ हो. If you like the way I just explain in this video, please comment me below so that just like in that manner जितने भी आपके पुलित्जर प्राइज और नॉवल प्राइज विनिंग आपकी नॉवेल्स हैं, आई जस्ट समराइज वन बाय वन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितनी भी नॉवेल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, समराइज करूँगी, दैट ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन समरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने मिले, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने मिले। तो मेरा जो मेन पर्पस है टू मेक यू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम, right? If you like, so please let me know in comment section, right? Till then, bye bye. We will meet in next video and another major and relevant topic for UGC NET English exam. Till then, bye bye. Have a great day.